يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وآت ذا القربى حقه والمسكين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط له في رزقه. حاضرین ملت، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام اور میرے دینی، ملی، سماجی اور معاشرتی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا ہے کہ انہوں نے ہم تمام کو اس مسجد میں جمعہ خطبہ کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر قسم کی تعریف اور توفیق اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیادہ ہے جنہوں نے ہم تمام کو زندگی بسر کرنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتوں سے نوازا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک۔ حاضرین ملت، گزشتہ ہفتہ میں آپ کے سامنے نوجوانوں کے متعلق گفتگو کیا تھا کہ نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، نوجوانوں کا مقام کیا ہونا چاہیے، نوجوانوں کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے، ان کا امیج ایک سوسائٹی کے اندر کیا ہونا چاہیے، اور اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نوجوان آگے بڑھے اور اس سوسائٹی میں امن و شانتی کا ماحول برپا کرے، اور اسلام امن و شانتی کا مظہر ہے، امن و سکون کا پیکر، امن و سکون کا پیکر اسلام ہے ہمارا، امن و سکون کا پیکر اسلام ہے ہمارا۔ سن لو وطن کے لوگوں پیغام یہ ہمارا، سن لو وطن کے لوگوں پیغام یہ ہمارا۔ اسلام جہاں پر معاشرہ کو برائی سے بچانے کے لیے، معاشرہ کو تباہی سے بچانے
के लिए, मुआशरा को बिदअत और खुराफात से बचाने के लिए, मुआशरा को गुनाहों से बचाने के लिए अम्र बिल मारूफ वल नही अनिल मुनकर का वसी निजाम नाफिज करता है। तो वहीं पर इस्लाम मुआशरे के अंदर अमन सुकून के माहौल को बर्पा करने के लिए आपसी उल्फत और मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है। तो वहीं पर इस्लाम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात करने का दर्स देता है। तो वहीं पर इस्लाम एक दूसरे के साथ मिलने और मोहब्बत से बात करने का दर्स देता है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का सबक पढ़ाता है। इस्लाम वो कल्चर है जो सिला रहमी की तालीम देता है, जो ये तालीम देता है कि जब तुम एक भाई दूसरे भाई से मिले तो सलामो दुआ करते हुए मिले, जब एक भाई दूसरे भाई से मिले तो मुस्कुरा कर मिले, जब एक भाई दूसरे भाई से मिले तो खंदा पेशानी से मिले। ये इस्लाम पैगाम देता है मेरे भाई, क्योंकि इस्लाम हमेशा मुआशरे के अंदर अमन शांति चाहता है, हमेशा मुआशरे के अंदर सुकून चाहता है। वो इस्लाम ये पैगाम देता है वआती दल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, कि रिश्तेदारों का हक अदा करो। ऐ मुसलमानों, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करो, तुम मिस्कीन का हक अदा करो और तुम मुसाफिरों का हक अदा करो। रिश्तेदारों का हक कैसे अदा करेंगे? रिश्तेदारों का हक इस तरह से अदा किया जाएगा, आपके कोई पड़ोसी रिश्तेदार है, कोई करीबी रिश्तेदार है, अगर आपके कोई भाई बीमारी में मुब्तला है तो आप उनकी बीमार की तीमारदारी कीजिए, आप उनके सामने जाइए, उनके हाल चाल को पूछिए। अगर आपके रिश्तेदार में कोई मोहताज है, गरीब है, तो आप उनको सदका करिए, ये आपके लिए सदका भी होगा और सिला रहमी भी होगा। और अगर आपके रिश्तेदार में कोई लाचार है, कर्ज में डूबा हुआ है, तो आप उनको कुछ अतिया तोहफा करें जिससे वो कर्ज चुका सके। और इसी तरह मिस्कीन का कैसे हक अदा करे? मिस्कीन का हक ऐसे अदा किया जाएगा, जब आपके घर में कोई मिस्कीन आ जाए, कभी हाथ फैला दे, तो आप अपने दरबार से उसको घुमा के ना भेजिए, आप उनको धुतकार कर ना भेजिए। ये मिस्कीन का हक है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है। इसी तरह से वब्न सबील का क्या हक है? कोई सफर करके दूर से आया हुआ है, प्रदेश से आया हुआ है, आपसे एक दिन रहने का मोहलत मांग रहा है, आप उन्हें रहने का जगह दीजिए, इंतजाम दीजिए। ये जो है वब्न सबील का हक है, जो आप और हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं वल जारि बिल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबी वब्निस सबील। और इसी तरह से पड़ोसियों का हुकूक अदा करना है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ रवादारी करना है, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना है। पड़ोसी किसे कहते हैं? करीब के रहने वालों को पड़ोसी कहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू है। अगर आपके पड़ोस में उसका घर है तो आप उनके साथ अदल इंसाफ का मामला करें, आप उनके साथ रवादारी का मामला करें, आप उनके साथ अच्छे सलूक, अच्छे बर्ताव करें। आपके घर में अगर कभी अच्छा कोई डिश बनता है, कोई खाना पकता है, तो आप अपने पड़ोस के घर में भी भेजा करें। हदीस में बिल्कुल सराहतन आता है कि साहबे रसूल, तुम क्यों नहीं शोरबा को ज्यादा कर लेते हो और अपने पड़ोस को क्यों नहीं भेज देते हो? ये इस्लाम का पैगाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन। साहबा इकराम अर्ज करते हैं मन या रसूलल्लाह, कौन शख्स मोमिन नहीं हो सकता? कौन शख्स मोमिन नहीं हो सकता? कौन मोमिन नहीं हो सकता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन वो नहीं हो सकता जिनके पड़ोसी भूखे प्यासे सो जाए और उनके पड़ोस में रहने वाले ऐशो आराम
इस्लाम के साथ अपनी जिंदगी गुजर कर रहा है, मालो दौलत की कोई कमी नहीं है, उनके पड़ोस में भूखा प्यासा कोई मर जाए तो ऐसे शख्स मोमिन नहीं हो सकता, ऐसे शख्स हकीकी मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसे शख्स इस्लाम के जुमरे में दाखिल नहीं हो सकता। मोमिन वो होता है जो पड़ोसियों का ख्याल रखता है, मोमिन वो होता है जो पड़ोसियों के साथ रियायत करते हैं, मोमिन वो होता है जो पड़ोसियों के साथ रवादारी करता है। मेरे भाइयों, एक सहाबा रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं और कहते हैं, हुजूर पाक, मेरे पड़ोसी मुझे सताते हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ और सब्र करो। वो शख्स आ जाता है, फिर उनके पड़ोसी उनको परेशान करता है, फिर उनके पड़ोसी उन्हें तकलीफ देता है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं और कहते हैं, हुजूर पाक, मेरे पड़ोसी मुझ पर जुल्म करते हैं, तकलीफ देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ और सब्र करो। फिर उनके पड़ोसी उनको सताते, फिर परेशान करते, फिर उनको बुरा भला कहते, फिर नबी के दरबार में पैगाम लेकर पहुंचता है और कहते हैं, हुजूर पाक, मेरे पड़ोसी अभी भी बाज नहीं आया, वो मुझे परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अखरिज मतअक इला तरीक, जाओ घर में, और घर में जाने के बाद अपने सारे सामान को उठाकर रास्ते में बाहर फेंक दो। वो साहबी ऐसा ही करता है, घर आता है, सारे सामान को उठाकर जो रास्ते में फेंक देते हैं। लोग पूछते हैं, मां शानुका यासी, क्या मतलब है, क्या मामला है, तुम्हारे क्या हो गया कि तुमने अपने सामान को बाहर निकाल दिया? वो शख्स कहता है कि क्यों ना निकालूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अखरिज मतअक इला तरीक, क्योंकि मेरे पड़ोसी मुझे सताते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं और मुझ पर जुल्म करते हैं, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सामान को बाहर फेंक दो। मैंने अपने सामान को बाहर फेंक दिया। जितने लोग वहां से गुजरते हैं, उनके पड़ोसी को बुरा भला कहते हैं, उनके पड़ोसी पर लानत भेजते हैं कि अल्लाह ताला का गजब हो उन पर, अल्लाह ताला का लानत हो उस पर। जब उनके पड़ोसी को मालूम चलता है कि लोग मुझ पर लानत भेजा करते हैं, तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम लोग रास्ते से जा रहे हैं और मुझ पर लानत भेजते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, तुम पर लानत इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि तुमने पड़ोसियों के साथ जुल्म करते हो, तुम जो है पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों को परेशान करते हो, उनको तकलीफ देते हो, उनको बुरा भला कहते हो। आज तुम इसी के हकदार हो जो तुम पर लानत भेजा जाता है। वो शख्स उनके पड़ोस के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे भाई, मुझे माफ फरमा दे, मैं आइंदा कभी गलती नहीं करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हिकमत से काम दिया, आपको मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांटने के बजाय कहा कि सामान को रास्ते में फेंक दो। वो खुद जाकर अपने शर्मिंदगी का इजहार किया और जैसे उससे माफी मांगा और कहा कि सामान उठा लो, आइंदा मैं कभी कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ये पड़ोसियों का मकाम है। लेकिन आज पड़ोसियों को दूर की बात, आज भाइयों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है। आज वालिदैन को बेघर किया जा रहा है। बेटे घर में रहते हुए बुढ़ापे के उम्र में पहुंच जाने के बाद वालिदैन खुद खाना बनाकर खाते हैं, परेशान है, तकलीफ है, बीमारी में दो चार है, किसी की सहारे की जरूरत थी। उस वक्त उनके बेटे ने अपने बाप को घर से बेदखल कर दिया और अपने बाप को घर में अलग करके रखा हुआ है। वो बाप और माँ खुद से खाना बना रहा है। क्या रब्बे करीम यही फरमाया था, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कहे लोगों, मैंने फैसला सुना दिया है कि तुम्हें वालिदैन के साथ एहसान करना है, वालिदैन के साथ रवादारी करना है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। अगर तुम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे तो कल कयामत के कोर्ट में हम तुमको सवाल करेंगे कि मैंने जो फैसला तुम पर सुनाया था, तुमने उस फैसला को अपनी जिंदगी में नाफिज क्यों नहीं किया, तुमने उस फैसले के मुताबिक क्यों नहीं चला, तुमने कुरान करीम को क्यों झुटलाया था, तुमने शरीयत मोहम्मदी को क्यों झुटलाया था। आज जाओ, तुम्हारा अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा।
اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائی یہ حالات ہوگی۔ رب کریم نے فرمایا تھا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، جب تم ان کو بڑھاپے کے عمر میں پاؤ، جب انہیں سہاروں کی ضرورت پڑے، جب انہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، جب ان کو کوئی کھانا بنا دینے کی ضرورت تھی، تم آج ان سے خود کھانا بنوا رہے ہو۔ جب انہیں مدد کی، سہاروں کی ضرورت تھی، جب وہ بڑھاپے کے عمر میں پہنچ جائے تو تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کا سہارا بنو۔ فلا تقل لهما اف، اسے لفظ اف نہیں کہا جائے گا، ولا تنهرهما، اسے جھڑک کر بات نہیں کی جائے گی، فقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے گی، اپنے جسم کو جھکا کر بات کی جائے گی۔ یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کا مرتبہ ہے۔ اور اس والدین کے ساتھ اگر آپ نے نافرمانی کی ہے، آپ نے اپنے جاب کے چکر میں، کمپنی کے چکر میں اگر آپ نے اپنے والدین کو بے گھر کر کے رکھا ہوا ہے، والدین کے ساتھ اپنے ٹائم کو نہیں بتاتے ہیں، والدین کے ساتھ ٹائم نہیں دیتے ہیں، یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش میں والدین کے ساتھ تھوڑا بیٹھ لیتے، والدین کے ساتھ تھوڑا گفتگو کر لیتے، والدین کے پاس تھوڑا بیٹھ کر حال چال پوچھ لیتے، تو کاش شاید کہ آج مجھے یہ حالت نہ دیکھنی پڑتی، کیونکہ وہی ہمارا اور آپ کے لیے جنت کا سبب ہے۔ میرے بھائی حاضرین ملت، یہ والدین کا مقام مرتبہ اس قدر ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اگر کوئی شخص قریبی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور یتیموں کا مدد کرتا ہے، غریبوں کا مدد کرتا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا آفر ہے۔ میرے بھائیو، یہ آفر نہیں، یہ دنیا کی کوئی کمپنی آفر نہیں دے سکتی ہے، فلپکارٹ نہیں دے سکتی ہے، امازون نہیں دے سکتی ہے۔ یہ آفر اگر دے سکتے ہیں تو رب کریم اور ان کے رب کریم کے فرمان کے مطابق چلنے والا وہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آتا ہے کہ ان یبسط له فی رزقہ، اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر تم مال و دولت میں برکت چاہتے ہو، وَإِن سَأَلَهُ فِي أَجَرِهِ، اور اگر تم اپنے عمر میں برکت چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہارے رزق میں برکت آئیں گے، غریبوں کی مدد کرو، تمہارے رزق میں برکت آئیں گے، یتیموں کے سہارا بنو، تمہارے عمر میں زیادتی ہوں گی۔ جب آپ ایک غریب کے پاس جائیں گے اور ان کی مدد کریں گے تو آپ کے عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کے رزق میں بھی بڑھ جائے گا۔ اب سوال اٹھتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اگر تقدیر میں 40 سال کا وقت لکھ دیا ہے کہ میں زندگی میں 40 سال ہی زندگی گزار سکتا ہوں، ان کے بعد مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے عمر میں برکت دی جائے گی، آپ کے رزق میں برکت دی جائے گی؟ جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا اتنا ہی رہنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، محدثین کیا تصریح کرتے اس حدیث کی ذرا سنیے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہاں پر ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے عمر 40 سال ہی دیں گے، لیکن اس 40 سال میں آپ سے وہ کام لے گا اللہ رب العالمین جو 80 سال والے نہیں کر سکتے، جو 100 سال والے نہیں کر سکتے۔ 40 سال والے سے وہ کام لے گا اللہ رب العالمین جو 90 سال والے نہیں کر سکتے۔ یعنی 40 سال میں وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ یتیم کا مدد بھی کرے گا، غریبوں کا مدد بھی کرے گا، والدین کی خدمت بھی کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے، مسجد کا تعمیر کریں گے، مدرسوں کا تعمیر کریں گے۔ یہ ایسا شخص ہوگا جو پورے دن میں اس کو یاد کریں گے اور آخرت میں بھی ان کا نام ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو ثواب ملے گا، ان کا سارے کے سارے چیز صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس طرح سے برکت ہوں گی۔ اور دوسرا جواب کیا بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں 2 کنڈیشن رکھا ہوا ہے۔ تقدیر میں 2 کنڈیشن رکھا ہوا ہے۔ ایک کنڈیشن کیا ہے کہ ایک تقدیر ہے، وہ تقدیر کونیہ ہے، اور ایک تقدیر شرعیہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ تقدیر کونیہ کے مطابق،
यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये लिख दिया है कि फला बंदा को 40 साल की उम्र मिलेगी, तो 40 साल के बाद वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन तकदीर शरइया ने आपको छूट देके रखा था, अगर ये बंदा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे, कुरान के पैगाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे, यतीम इनके लिए दुआ करेंगे, गरीब इनके लिए दुआ करेंगे, मिस्कीन इनके लिए दुआ करेंगे, या अपने उम्र के इजाफा के लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके उम्र को इजाफा कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज्क में बरकत दे देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लिखे हुए तकदीर से उनके रिज्क को इजाफा कर देता है। जब आप किसी गरीब के पास जाएंगे, किसी बेसहारा के पास जाएंगे और उनको राशन देंगे, उनकी मदद करेंगे, तो बेसहारा आपको क्या कहेंगे कि अल्लाह इनकी उम्र को बढ़ा देना, या अल्लाह तो इनके रिस्क में बरकत दे देना। जब किसी आप यतीम छोटे बच्चे के पास जाएंगे और उनको जो है अपने जिंदगी में उनको जो है स्कूल की तालीम देंगे और उनको जो है मदरसों की तालीम देंगे, उन्हें जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले लेंगे, वो यतीम बच्चा दुआ देंगे कि अल्लाह तो इस शख्स की उम्र को और मजीद लंबा कर देना, या अल्लाह तो इनके रिस्क को और बढ़ा देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताइए, एक बेसहारा दुआ करता है आपके लिए, एक यतीम दुआ करता है, एक मिस्कीन दुआ करता है, एक मुसाफिर दुआ करता है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उम्र में इजाफा नहीं करेगा? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क में बरकत नहीं देगा? यकीनन मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क में भी बरकत देगा, आपके उम्र में भी इजाफा कर देगा। इसलिए यतीमों से दुआ लीजिए, मिस्कीनों से दुआ लीजिए मेरे भाई, फकीरों से दुआ लीजिए मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ जो है दुश्मनी करके रखा हो, किसी की जमीन को हड़प के रखा हो, किसी के माल और दौलत को जो है नाजायज तरीके से खाए हो। कल कयामत के दिन जो है आपसे सवाल किया जाएगा, और उससे पहले दुनिया के अंदर जब आपका जनाजा जाने लगेगा, एक शख्स दौड़ता हुआ आएगा, कहेगा कि जरा देखने दो मुझे, और जनाजा को रुका कर वो क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे कि तुमने मेरी जमीन को हड़पा, मुझसे दुश्मनी की, मेरे माल और दौलत को नाजायज तरीके से तूने खाया, आज क्या लेके जाओगे? ले जाओगे जमीन के पेपर कब्र में, ले जाओगे जमीन को उठाकर कब्र में, उधर उनके बच्चों की क्या हालत होगी मेरे भाई। और अगर कोई शख्स दौड़ता हुआ आए और कहे कि जरा जनाजा को रुको, ये बड़ा अच्छा शख्स था, गरीबों का मदद करता था, यतीमों का मदद करता था, और जनाजा को रुका कर बोलेंगे कि अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करे, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को बख्श दे, तेरे लफ्ज़ों को खताओं को मिटा दे, ये दुआ दे दे, तो मेरे भाइयों बताओ उस दिन आपका नसीब क्या होगा। इसलिए गरीबों के साथ मदद कीजिए, किसी के साथ नाइंसाफी ना करिए, किसी के हक को नाहक तरीके से मत खाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने रिश्तेदार से कहते हैं, अपने करीबी रिश्तेदार से कहते हैं कि आले कुरैश वाले, तुम्हें जो लेना है मुझसे ले लो, जो आज मांगना है मुझसे मांग लो, कल कयामत के दिन मैं तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, कल कयामत के दिन मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अरे अब्दुल मुतल्लिब की बेटी सफिया, अगर तुझे कुछ मांगना है आज मोहम्मद से तुम मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। अरे मोहम्मद की बेटी फातिमा, तुझे जो मोहम्मद से मांगना है मांग ले, कल कयामत के दिन तेरा बाप मोहम्मद कुछ काम ना आएगा, कल कुछ ना कर पाएगा, कहीं सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आज अगर आप दुनिया में गरीबों की मदद करेंगे, रिश्तेदारों की मदद करेंगे, यही आपके लिए आखिरत का तोशा बनेगा मेरे भाइयों, यही आपके लिए आखिरत का जरिया बनेगा मेरे भाइयों। वरना दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा मैसेज दिया कि दुनिया में सारी चीज मुझसे ले लो जो लेना है, कल कयामत के दिन सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। आज मुझसे कुछ भी मांगना है मांग लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का मसीहा थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों का मसीहा थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन के मसीहा थे, बेसहारों का सहारा थे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की जिम्मेदारी आपके कांधों पर दी जाती है। आप परेशान हो जाते हैं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊं कि नहीं निभा पाऊं। पूरी दुनिया में इस्लाम के आलम को, इस्लाम के झंडे को लहराना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे इस कमजोर कांधे पे दिया गया, मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकता हूं कि नहीं निभा सकता हूं। डरते डरते खिमाए खदीजा में आकर पहुंचते हैं, रोते हैं। खिमाए खदीजा, हजरत खदीजा फरमाती है, बताओ क्या परेशानी है? फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी इस कमजोर कांधे पे बड़ी जिम्मेदारी दी है, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी को मुकम्मल कर सकूंगा। एक बीबी क्या हौसला देते हैं
ए मेरे सरताज, ए मेरे आका, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो बेसहारों का सहारा है, आप तो गरीबों का सहारा है, आप लोगों की मदद करते हैं, आप मिस्कीन की मदद करते हैं, आप लोगों की भलाई करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अगर ये जिम्मेदारी दी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिम्मेदारी को निभाएंगे भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस कमजोर कांधों की जिम्मेदारी दी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर इसको निभाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लक़द खशियतु अला नफ्सी, मैं आपसे नफ्स पर डर रहा हूं कि कहीं मेरा जान ही ना निकल जाए। मेरे भाइयों, ये थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत होने लगे, कितने बेवा रो रहे थे उस दिन, कितने यतीम रो रहे थे उस दिन, कितने कमजोर लोग रो रहे थे। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, वो इसलिए रो रहे थे कि अब हमारी मदद कौन करेगा, अब हमारा सहारा कौन बनेगा, अब हमें खाना कौन खिलाएगा। अबू बकर रास्ते से गुजरते तो एक बच्ची रो रही होती है। अबू बकर फरमाते, बेटी क्यों रो रही हो? फरमाते हैं, क्यों ना हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, अब मेरे बकरियों का दूध दोकर कौन देंगे। अल्लाह, ये आका, ये सरताज, ये सरवर कौन, एक गरीब बच्चे के बकरियों का दूध दोया करते थे। आज हमारे पास अगर थोड़े माल दौलत आ जाए तो आज हम गरीबों की तरफ देखना गवारा नहीं करते हैं, गरीबों के बस्तों से गुजरना गवारा नहीं करते हैं। और मेरे आका और सरवर कौनैन के सीरत को देखिए, मेरे आका सरवर कौनैन के कैरेक्टर को देखिए कि लोग इसलिए रो रहे हैं कि अब कौन हमारी मदद करेंगे, इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, मदद कौन करेंगे। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर का दौर आता है। साहबा रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गरीबों की मदद क्या करते थे, यतीमों की मदद क्या करते थे। यहाँ तक कि एक शख्स की मदद करने में कई सहाबे पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं मैं मदद करूंगा, वो कहते हैं मैं मदद करूंगा, वो कहते हैं मैं मदद करूंगा। इस तरह की हालत थी। वो समाज किस कदर खुशगवार समाज होगा, वो मुआशरा कितना शानदार मुआशरा होगा मेरे भाइयों। और इस्लाम को पूरे दुनिया में आम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद हजरत अबू बकर के हाथ में खलीफा का सनद दिया जाता है, मसनद खिलाफत पर बैठाया जाता है। ये हजरत अबू बकर रात के वक्त निकलते हैं, कहीं कोई लाचार बैठे हुए तो नहीं है, कहीं किसी के घर में आज चूल्हा तो नहीं जला, कहीं कोई परेशान तो नहीं है, कहीं किसी कोई तकलीफ में नहीं है। हजरत अबू बकर को खबर मिली कि फुला बस्ती में एक बुढ़िया बेसहारा है, जिनके ना बच्चा है, जिनका ना कोई है, ना उसके कोई मदद करने वाला है। हजरत अबू बकर रात के तिहाई हिस्से में उठकर उस बुढ़िया के घर जाकर उनकी मदद करते, रोजाना जाते। उमर फारूक को मालूम चला कि हजरत अबू बकर रात के वक्त उठकर कहां जाते हैं रोजाना। एक दिन उमर फारूक सोचे कि जरा अबू बकर के पीछे पीछे चल के देखता हूं कि रात में अबू बकर जाते कहां हैं। अबू बकर सिद्दीक रात के वक्त कहां जाते हैं पता लगाया, उमर फारूक पीछे पीछे चलते हैं, अबू बकर आगे आगे जा रहे हैं। अबू बकर को मालूम नहीं कि उमर फारूक हमारे जासूसी कर रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं। हजरत अबू बकर एक बुढ़िया के घर में दाखिल होते, उनके घर को सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद एक टब में पानी लाकर रखते हैं और खाने पीने के जरूरी अशिया को उनके घर में रख देते हैं। बूढ़ी औरत को भी मालूम नहीं। ये कर कर हजरत अबू बकर झोपड़े से निकल करते हैं, बाहर निकल पाते हैं। उमर फारूक दौड़ते हुए आगे जाते और कहते हैं कि अबू बकर, मैं कभी आपसे सवाब में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपका जासूसी करने आया था और आप एक गरीब, एक कमजोर, एक बुरी, आप हमें कह लेते। इस तरह से आप खुद उनके सफाई करने आए उनके घर की। ये हजरत अबू बकर थे मेरे। जब हजरत उमर फारूक का दौर आया, हजरत उमर फारूक भी रात के वक्त अपने घर से मदीना से बाहर निकलते थे, सहरा में चले जाते थे, बैकान में चले जाते हैं, कहीं कोई परेशान तो नहीं है, छोटे बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जाते थे, कहीं किसी बच्चे को धूप की वजह से रो तो नहीं रहे हैं, कहीं कोई परेशान तो नहीं होते हैं। रोजाना रात को जो है गरीबों के बस्तियों का चक्कर लगाया करते थे हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक। एक दिन एक बस्ती में जाते, देखते हैं कि एक झोपड़ा से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक उस घर में दाखिल होकर देखते हैं कि माजरा क्या है, हालात क्या है। देखते हैं कि बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं,
اور उनकी माँ उनके लिए हांडियां चढ़ा के रखे हैं और पानी को उबल रहे हैं। हजरत उमर फारूक पर फरमाते हैं कि बच्चे भूख की वजह से तड़प रहा है, बच्चे भूख की वजह से रो रहा है, और तुम क्या कर रही हो, तुम हांडी में क्या पका रही हो, ये कब तैयार होगा, कब बच्चे को खिलाओगे? वो औरत कहती है, वो औरत को नहीं मालूम कि यही अमीरुल मोमिनीन है, यही उमर फारूक है, रात के वक्त पहुंच चुका है। वो औरत कहती है क्या करे, घर में कुछ खाने का नहीं है, घर में कुछ खाने पीना नहीं है, क्या करे? बच्चों को सहलाने के लिए, बच्चों को थोड़ा तसल्ली देने के लिए हांडी पे पानी रख दिया हूँ, कुछ कंकरियां डाल दिया हूँ, ताकि बच्चे देखते देखते ये सोचेंगे कि मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी माँ खाना तैयार कर रही है। इस तरह करते करते बच्चे सो जाएंगे। मैं क्या करूं, मेरे घर में कुछ नहीं है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, तुमने अमीरुल मोमिनीन को खबर क्यों नहीं किया, तुमने उमर फारूक को ये खबर क्यों नहीं पहुंचाया? हालांकि उमर फारूक वही है, अमीरुल मोमिनीन वही है। उस औरत को मालूम नहीं कि यही अमीरुल मोमिनीन है, यही उमर फारूक है। वो औरत कहती है कि तुम गवाह रहना, कल कयामत के दिन अमीरुल मोमिनीन के गिरबान को मैं पकड़ूंगी, रब से कहूंगी, अरे रब, दुनिया वालों ने इसको अमीर बनाया था, मुसलमान का खलीफा बनाया था, मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे, मेरे बच्चे रो रहे थे, उमर फारूक देखने नहीं आए थे, अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आए थे, अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आए थे। फरमाया कि जरा रुको, अमीरुल मोमिनीन का दिल लरज जाता है, दिल लरज उठता है, और वहां से दौड़ता हुआ गोदाम में आता है, आटे का बोरी उठाते हैं और घी लेते हैं, दूध लेते हैं, दौड़ते दौड़ते फिर उस कमजोर, उस गरीब, उस बेवा औरत के घर पहुंचते हैं, और जाकर उनको खाना बनाकर उनके बच्चों को खिलाकर सुलाकर आते हैं, और लास्ट में कहते हैं कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं ही उमर फारूक हूं। ये थे उमर फारूक की सीरत। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम को सहाबा इकराम की सीरत के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हाज़रीन मिल्लत और ख़वातीन हज़रात और नौजवानान मिल्लत, आज हमारी हालत क्या है? आज हमारे हालत क्या है? आज इंसानियत का मफ़हूम हमारे ज़हन में क्या है? आज रिश्तेदारी का मफ़हूम हमारे ज़हन में क्या है? आज सिला रहमी का मफ़हूम हमारे ज़हन में क्या है? मेरे भाइयों, आज भाई भाई से दुश्मनी है, भाई भाई से बात नहीं करते, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से बात नहीं करते, बाप बेटे से बात नहीं करते, बेटे बाप से बात नहीं करते। आपको मालूम है आपका अंजाम क्या होगा? ला यदखुलुल जन्नत क़ातिअन। ये रिश्ता तोड़ने वाले, ये बाप बेटे में दुश्मनी रखने वाले, एक मुस्लिम भाई दूसरे मुस्लिम भाई से बात ना करने वाले, दुश्मनी और अदावती रखने वालों का अंजाम क्या होगा? वो जन्नत में नहीं जा सकता है। मेरे भाइयों, आज हम और आप सिला रहमी का मफ़हूम ये समझे बैठे हुए हैं, इंसानियत का मफ़हूम ये समझे बैठे हुए हैं, रिश्तेदारी का मफ़हूम ये समझे बैठे हुए हैं कि जो हमको इन्विटेशन कार्ड देगा हम अपने शादी में उनको बुलाएंगे, जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, जो हमारे साथ सही से लेन देन करता है हम उनके साथ सही से लेन देन करेंगे, जो हमारे कहनाओं को मानता है हम उनके कहनाओं को मानेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। नहीं मेरे भाइयों, ये सिला रहमी का मफ़हूम नहीं है, ये सिला रहमी का मफ़हूम नहीं है, ये इंसानियत का मफ़हूम नहीं है, ये जो है सीरत रसूल का मफ़हूम नहीं है। मैं बताता हूँ सिला रहमी का मफ़हूम क्या है, मैं बताता हूँ इंसानियत का मफ़हूम क्या है। इंसानियत का मफ़हूम ये है कि अगर कोई भाई आपसे दुश्मनी करे तो आप उनसे दोस्ती करें, कोई भाई अगर आपसे नफरत करे आप उनसे मोहब्बत करो, कोई भाई आपसे कता ताल्लुक करना चाहे तो आप उनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाओ, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। कोई गरीब है इसके मतलब ये नहीं कि शादी में आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा,
اس لیے آپ ان کو انویٹیشن کارڈ نہ دے دیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر کے پاس اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، تو آپ ان کے اپنے شادی میں ان کو بھی انویٹیشن کارڈ دیجیے. یہ صلہ رحمی کا مفہوم ہے، یہ انسانیت کا مفہوم ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تو ہم تمام کو قرآن کریم کے فرامین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو انسانیت کی صحیح ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہم نے پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو ہم نے بیماری میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی بیماری کو ازالہ فرما. یا اللہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.